رخسانہ گاڑی کو اپنی رہائش گاہ پر لے آئی تھی۔ اس کی حواس باختہ شکل پر نظر پڑتے ہی اس کے سمندر کنارے موجود شاندار بنگلے کے مستعد محافظوں نے بنگلے کا آہنی گیٹ کھولا اور اس کی کار کے گرد گھیرا ڈال کر مؤدب کھڑے ہو گئے۔ اس نے پہرے داروں کو حکم دیا، تم لوگ جاؤ، صبح تک کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا۔ اپنے منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر وہ سب لوگ جس مستعدی سے آئے تھے اس سے زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ عارف نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دیا ہوا تھا اور اس طرح اپنے کندھے پر رخسانہ کا آدھا بوجھ برداشت کرتے ہوئے اس کی شاندار خوابگاہ تک چلے آئے تھے۔ عارف نے اس سے پہلے اس بنگلے کو دور سے ہی دیکھا تھا۔ تحریک کے باقی لوگوں کی طرح اسے صرف اس بات کا علم تھا کہ یہ بابا صاحب کی سیکرٹری رخسانہ کا بنگلہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ اس بات کا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ اندر سے یہ بنگلہ کتنا شاندار ہوگا، لیکن اپنی آنکھوں سے اندر کا احوال دیکھ کر اس کی حیرت گم ہو رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس ملک میں کوئی عورت اتنے قیمتی اور عظیم الشان ساز و سامان کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے۔ بابا صاحب کا رہن سہن بظاہر جتنا سادہ تھا، رخسانہ کا اس کے برعکس اتنا ہی شاہانہ۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلے سرہانے رکھے انٹرکام پر اپنی سیکرٹری سے رابطہ کیا۔ بولی، میں جب تک خود بیدار نہ ہو جاؤں کوئی کال نہ ملانا۔ مختصر سا پیغام دے کر اس نے فون رکھا اور اپنے شاندار پلنگ پر بے دم سی ہو کر لیٹ گئی۔ اس نے عارف کو ہاتھ کے اشارے سے کہا، بیٹھو۔ 3-4 گہرے سانس لینے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اف میرے خدایا، میرا تو دل ابھی تک ڈوبا جاتا ہے۔ خدا کی پناہ، مجھے تو اپنے زندہ رہنے پر یقین نہیں آ رہا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ عارف بولا، آپ آرام کیجئے، میں آپ کے لیے کوئی جوس وغیرہ منگواتا ہوں، کوئی ٹرینکولائزر لے لیجئے، آپ کے لیے آرام کرنا ضروری ہے۔ عارف میاں اس پر بچھے جا رہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ لسانی تحریک کی طرف سے اس قتل عام کی تفتیش پر مامور کسی بھی کمیٹی کے عتاب سے اسے صرف رخسانہ بچا سکتی ہے۔ عین ممکن تھا کہ وہ انکوائری کمیٹی میں کسی بھی گھاگ ممبر کی نزدیک اپنی کسی غیر معمولی حرکت کی بنا پر مشتبہ ٹھہر جاتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ لوگ اسے محض صرف اس لیے زندہ نہ رہنے دیتے کہ وہ بہرحال ایک بڑے حادثے کا عینی شاہد ہے۔ عارف نے آستانے میں لمبا عرصہ گزارا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کالیا کے ہاتھوں زندہ بچ جانے والی زندہ درگور نرس کی سانسوں کی ڈور تب تک بندھی ہے جب تک اس معاملے کی تحقیق میں اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، جس کے فوراً بعد تحریک کی بقا کے لیے اس کی قربانی دے دی جائے گی۔ یہ سلوک اس کے ساتھ بھی کیا جا سکتا تھا۔ ان جرائم پیشہ درندوں کے درمیان زندگی کی ضمانت کیا تھی؟ کسی بھی لمحے اسے رازداری قائم رکھنے کے لیے کتے کی موت مارا جا سکتا تھا۔ آئے روز اس شہر کے گلی کوچوں میں لسانی تحریک کے وفاداروں کی جو لاشیں برآمد ہوئی تھیں، ان میں بعض ایسے بھی ہوتے تھے جنہیں بابا صاحب کے حکم پر ہی ایک بڑے جرم میں حصہ لینا پڑتا تھا، اور بابا صاحب کے حکم پر ہی پھر انہیں رازداری کے تحفظ کے لیے قتل بھی ہونا پڑتا۔ اچانک ہی رخسانہ نے اسے چونکا دیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس کو کہنے کے لیے کوئی ڈھنگ کی بات نہیں سوچ رہی تھی۔ بولا، جی کچھ نہیں۔ رخسانہ نے چند منٹ بعد ہی خود کو حیرت انگیز حد تک نارمل کر لیا تھا۔ بولی، میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میرے جیتے جی کسی کو تمہاری طرف میلی نظروں سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ عارف، تم نے میری جان بچائی ہے، اگر تم نہ ہوتے تو وہ پاگل کتا مجھے بھی مار دیتا۔ میں زندگی بھر تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ تم میرے محسن ہو، شاید قسمت نے مجھے اسی لیے تم تک پہنچایا کہ تم میری زندگی بچا لو۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں کالیا کو زمین کی 7ویں تہہ سے بھی ڈھونڈ نکالوں گی اور اسے ایسی موت نصیب ہوگی جس کا تصور بھی شاید اس شہر میں کسی نے نہ کیا ہوگا، لیکن اس لمحے وہ میری جان لے سکتا تھا، اس بات سے میں بخوبی آگاہ ہوں۔ تم اطمینان سے لیٹ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے عارف میاں کو اپنے پلنگ پر اپنے قریب ہی بازو کو ہلکا سا کھینچ کر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عارف میاں خود ایب نارمل ہونے لگے۔ کچھ دیر پہلے جو گھبراہٹ رخسانہ پر طاری تھی اب ان کے ذہن پر سوار ہونے لگی تھی۔ انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ بابا صاحب کی سیکرٹری ان پر اتنی مہربان ہو جائے گی کہ اپنا آپ ہی نچھاور کرنے پر تل جائے گی۔ رات دیر تک رخسانہ عارف میاں کے احسان کا بدلہ چکاتی رہی۔ صبح عارف میاں کی آنکھ اس کے بستر پر کھلی تھی، رخسانہ وہاں موجود نہیں تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ واپس لوٹی تو خاصی نکھری نکھری اور مطمئن دکھائی دی۔ رات والی پریشانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے عارف میاں کی رہنمائی بھی خود ہی باتھ روم تک کی اور اس کی واپسی پر اس کا استقبال ناشتے کی میز پر کیا۔ اس نے ٹوسٹ کو مکھن لگا کر عارف میاں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بابا صاحب کا فون آیا تھا۔ عارف میاں کا دل دھک سے رہ گیا۔ خیریت؟ بولی، ہاں، میں نے انہیں تمہاری بہادری اور تحریک کے لیے جان نثاری سے آگاہ کر دیا ہے۔ بہت خوش ہو رہے تھے بابا صاحب۔ ہم اب تھوڑی دیر کے بعد ان سے ہی ملنے جا رہے ہیں۔ تحریک کا کوئی بھی ذمہ دار اگر تم سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرے تو اسے سختی سے ڈانٹ دینا۔ رخسانہ نے اسے تسلی کروائی۔ عارف میاں رخسانہ پر پیچھے جا رہے تھے۔ بولے، میں آپ کا شکریہ کس منہ سے ادا کروں؟
रुखसाना बोली, इस मुंह से? और ये कहते हुए उसने एक अजीब सी हरकत कर दी। थोड़ी देर के बाद ही वो बाबा साहब के आस्ताने पर मौजूद थे। रुखसाना बीबी की शक्ल पर नजर पड़ते ही वहां मौजूद बाबा साहब के जाती अमले के लोगों की नजरें झुकती चली जाती। वो रुखसाना के साथ होने की वजह से आरिफ मियाँ को भी उतना ही एहतराम दे रहे थे। बाबा साहब के जिस कमरे की तरफ रुखसाना उसे लिए जा रही थी वहां कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता था। बाबा साहब की ख्वाबगाह में किसी को कदम रखने की मजाल नहीं थी, जबकि रुखसाना के ताक़ुब में आरिफ मियाँ मुंह उठाए चलते चले जा रहे थे। बाबा साहब अक्सर साहिब फराश रहते थे, ये उनकी खास अदा थी। ये एक सिग्नल होता था हुक्मरानों के लिए कि बाबा साहब को उनकी खुशनुदी मकसूद है और वो किसी बात पर नाराज हो गए हैं। उनका तिब्बी मुआयना करने के लिए भी खुसूसी मेडिकल टीम मुकर्रर थी, जिसके तमाम अरकान लिसानी तंजीम के जाननिसार थे। बाबा साहब की ख्वाबगाह में कदम रखते ही एक लम्हे के लिए आरिफ मियाँ को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी की लहर दौड़ने का एहसास हुआ। बाबा साहब एक आरामदेह तख्तपोश पर टांगे पसारे बैठे थे। तंजीम की एक रजाकारा बड़े खुशियो खुजू से उनके पांव दबा रही थी, जबकि दूसरी उनके चरणों में पांव पसारे बैठी थी। उन्होंने रुखसाना की सूरत दिखाई देते ही रजाकाराओं से कहा, चलो तुम लोग। दोनों ने करीबन झुकते हुए रुखसाना को आदाब कहा और उल्टे कदमों कमरे से बाहर चली गईं। आओ आरिफ मियाँ आओ, बड़ी तारीफ की है तुम्हारी रुखसाना ने, भाई बड़े जबरदस्त आदमी मालूम होते हो। बाबा साहब ने इतनी बेतकल्लुफी से आरिफ मियाँ को मुखातिब किया था कि उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। रुखसाना बोली, बाबा साहब अगर कल ये नौजवान अपनी जान पर खेल कर मेरी जान न बचाता तो। बाबा साहब ने उसकी बात रास्ते में ही काट दी। अरे छोड़ो रुखसाना, हमारे जीते जी कोई तुम्हारा बाल नहीं बीका कर सकता, तुम जरा चाय वगैरह का बंदोबस्त करो। उन्होंने रुखसाना को हुक्म दिया। रुखसाना ने तसल्ली देने वाली नजरों से आरिफ मियाँ की तरफ देखा और बाहर चली गई। क्या हो गया था उस साले कालिया को, कुत्ते के पिल्ले की ये मजाल, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अरे बन्ने भाई को मार डाला, ये हो क्या रहा है? इस शहर में कयामत क्यों नहीं आ जाती? पहले जाकिर मारा गया और अब बन्ने भाई, ओ मेरे खुदा। बाबा साहब ने आलमे वहशत में 2 मरतबा अपनी ऐनक उतार कर दोबारा नाक पर जमाई थी। इस दरमियान उनके चेहरे पर बनते बिगड़ते तासुरात इस बात की निशानदही को काफी थे कि वो गुस्से से बावले हुए जा रहे हैं। उन्हें अपने साथियों की मौत का गम नहीं था, इस बात पर उनका खून खौल रहा था कि इस मुल्क में कौन शख्स है जिसने उनके 2 जाननिसारों को जान से मार देने की हिम्मत की। आरिफ मियाँ ने अपने खुश्क गले में थूक निगलते हुए कहा, बाबा साहब जहाँ तक मुझे शक है एजेंसी के लोग हमारी सफों में खास से अंदर तक घुस आए हैं, ये सब उन्हीं कहा किया धरा है। बाबा साहब बोले, अरे खाल खींच लूंगा सालों की, उनके जिस्मों में इतने सुराख करवाऊंगा कि जिस्मों की शनाख्त मुमकिन न रहे। ढूंढो इन गद्दारों को और एक एक करके मार डालो। जाओ, तुम्हें खुली छुट्टी दे रहा हूँ, किसी से इजाजत की जरूरत नहीं। उनके जिस्मों से पाव पाव गोश्त उतार कर तड़पा तड़पा कर मार डालो। क्या हुआ, क्या था, कैसे हुआ, बताओ मुझे, मैं सोचता हूँ कुछ, मुझे ही कुछ करना होगा, बाकी तो सारे साले अय्याशियों में पड़ गए। बाबा साहब की वहशत दीदनी थी। कभी वो अपने सर के बालों में जोर जोर से उंगलियां चलाते, कभी दाएं और कभी बाएं हाथ को झटका देते और कभी ऐनक उतार कर अचानक अपने हाथ में पकड़ते, फिर नाक पर जमा लेते। आरिफ मियाँ ने उन्हें तफसीलन सारी वारदात सुनानी शुरू की। उसने कमाल होशियारी से बाबा साहब को भी बावर करवा दिया कि कालिया ही असल गद्दार था जिसने बाबर को बर वक्त खबरदार करके दौड़ा दिया, और जब उसकी गद्दारी का भेद खुल गया तो उसने बन्ने भाई को ही कत्ल कर डाला। उसने जानबूझकर बाबा साहब के दिल में एक मुस्तकिल शक पैदा कर दिया था कि उनके नजदीकी लोगों में जरूर एजेंसी के लोग मौजूद हैं। बाबा साहब बोले, मुझे पहले ही इस बात का शक था, खैर देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। बाबा साहब की लाफ गुजाफ जारी थी जब रुखसाना चाय की ट्रॉली लेकर अंदर आ गई। उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही हैरत अंगेज तौर पर बाबा साहब का मूड खुशगवार हो गया। उन्होंने रुखसाना की तरफ देखकर आंख दबाई, बोले, इसे मरकज में ले आओ, काम का लड़का है। रुखसाना बोली, जो हुक्म बाबा साहब, और कहते हुए चाय बनाकर उनके सामने रख दी। चाय नोशी के दौरान बाबा साहब बड़ी मक्कारी से आरिफ मियाँ को टटोलते रहे। वो उससे मुख्तलिफ नौयत के सवालात पूछ रहे थे। फिर उन्होंने एक खुसूसी मीटिंग में अब से 1 घंटे बाद शिरकत का हुक्म देकर उसे वहां से जाने की इजाजत दे दी। रुखसाना उसे अपने कमरे में बिठाकर दोबारा बाबा साहब के पास आ गई थी, जिन्होंने फौरन परवेज भाई से राब्ते को कहा। चंद मिनट में लिसानी तंजीम के 5 सरकर्दा भेड़ियों तक बाबा साहब का ये हुक्म पहुंच चुका था कि उन्हें फौरन मीटिंग के लिए आस्ताने पहुंचना है। उस अहम मीटिंग में उन 5 के अलावा बाबा साहब और आरिफ मियाँ भी मौजूद थे। सुबह के अखबारों में बन्ने भाई के कत्ल की खबर उन लोगों ने पढ़ ली थी और उस अहम मीटिंग के बाद ही उन्हें अगला लाहे अमल तय करना था। बाबा साहब के हुक्म पर एक मर्तबा फिर आरिफ मियाँ ने अपना घिसा पिटा बयान सबके सामने दोहराया, जिसमें उसने हस्ब साबिक कालिया को एजेंसी का एजेंट करार देते हुए उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाया और कहा कि बाबर को फरार करवाने में उसी का हाथ है।
बन्ने भाई को उस पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने मजीद तफ्तीश के लिए उसे 59 भेजना चाहा था, जबकि कालिया रास्ते में फरार हो गया और उनकी मौजूदगी ही में वापस आकर उसने 4 बंदे भी मार डाले। बन्ने भाई ने आखिर कालिया पर ही क्यों शक किया, तुम पर? परवेज ने कुछ कहना चाहा तो बाबा साहब ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हम तस्दीक कर चुके हैं। आरिफ बोला, मुझ पर भी शक किया था उन्होंने, लेकिन एक मरहले पर तैश खाकर कालिया ने खुद ही तस्लीम कर लिया कि उस पर शक बचा है। उसने भागने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों गार्ड की मदद से हमने उस पर काबू पा लिया। बाबा साहब के मना करने के बावजूद आरिफ मियां ने एक ऐसी कहानी सुना दी जिसका ऐनी शाहिद उसके अलावा कोई नहीं था। उसके बाद किसी को बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि सबको बाबा साहब की नाराजगी की फिक्र दामनगीर होने लगी। बाबा साहब ने अचानक ही हाकिमाना लहजे में उन्हें मुखातिब किया, बन्ने भाई और बाकी तीनों के कत्ल का इल्जाम एजेंसियों पर लगाओ और मुखालिफ पार्टी की मिली भगत करार दे दो। कालिया का नाम किसी की जबान पर नहीं आना चाहिए। तुम पांचों उसे 48 घंटे के अंदर अंदर जिंदा या मुर्दा मेरे पास पेश करोगे। बाबा साहब ने हाथ की उंगली से आरिफ मियां की तरफ इशारा किया। अगर मैं भूल नहीं रहा तो उसकी 2 जवान बहनें हैं। तुम उन दोनों को आज रात ही 59 पर पहुंचा दो। उसकी माँ को मार डालना। बुढ़िया बेचारी अपनी जवान बेटियों के इगवा और बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त करने से बच जाएगी। मैं तंजीम के जानिसारों के वालिदैन की बहुत इज्जत करता हूँ, और हाँ, उन दोनों को मेरे आने तक छूना भी नहीं। पहले मैं फिर कोई और। उन्हें इतनी इज्जत तो मिलनी चाहिए, आखिर वो कालिया की बहनें हैं। अपनी बात के खात्मे पर बाबा साहब ने जोर का कहका लगाया, जिसमें वहाँ मौजूद दरिंदों ने उनका पूरा पूरा साथ दिया। उन सबकी आंखों में खून उतर आया था। उनके चेहरों पर बरसती लानत दो चंद हो गई थी। अपने ही एक साबिका साथी की नौजवान बहनों की आबरूरेजी के तसव्वुर ने उनके शैतानी जहनों में हलचल मचा दी, और वो भूखे भेड़ियों की तरह जल्द अज जल्द अपने खून की प्यास बुझाना चाहते थे। मीटिंग बर्खास्त हो गई। अगले ही लम्हे बाबा साहब अपने कमरे में जमा होने वाले अखबार नवीसों से मुखातिब थे। उन्होंने बन्ने भाई के कत्ल को लिसानी तंजीम के लिए कभी न पूरा होने वाला नुकसान करार दिया, और उस कत्ल का इल्जाम एजेंसियों पर लगाते हुए कहा कि एजेंसी के लोगों की आशीर्वाद से मुखालिफ लिसानी तंजीम ने ये घिनौना कारनामा अंजाम दिया है। इस ज़िम्न में उन्होंने मुखालिफ लिसानी तंजीम के 4 सरकर्दा लोगों के नाम लेते हुए बराह रास्त उनको इस बहीमाना वारदात का मुर्तकिब करार देते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ बन्ने भाई और 3 दूसरे लोगों को उनकी रिहाइश गाह पर कत्ल किया, बल्कि तंजीम के मेडिकल यूनिट की एक एम्बुलेंस पर हमला करके एक नर्स की आबरूरेजी करने के बाद गला घोंट कर मार डाला, और दूसरी तंजीम के अस्पताल में करीबुल मर्ग है। बाबा साहब ने अखबार नवीसों को उन दोनों रजाकाराओं पर होने वाले घिनौने जुल्म की वारदात रो रो कर सुनाई। उनका दिल गम से फटा जा रहा था और वो बार बार अपनी ऐनक उतार कर आंखों में आने वाली नमी को साफ करते। बाबा साहब ने मुखालिफ लिसानी तंजीम की उस गैर इंसानी हरकत की जबरदस्त मुजम्मत करते हुए उन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने एम्बुलेंस रोक कर दोनों नर्सों को अगवा किया और उनकी इज्तिमाई आबरूरेजी करने के बाद उनमें से एक को मार डाला। दूसरी की हालत भी खतरनाक है। अभी बाबा साहब की कॉन्फ्रेंस जारी थी जब उनके एक खादिम ने एक टेलीफोन उन तक पहुंचा दिया। बाबा साहब ने फोन पर अभी कुछ सुना ही था कि रिसीवर उनके हाथ से गिर पड़ा। उनके खादमीन दीवानावार बाबा साहब की तरफ लपके। शायद उन्होंने कोई इंतहाई अफसोसनाक खबर सुन ली थी। बाबा साहब कमाल के अदाकार थे। देखते ही देखते उनकी हिचकी बंद गई। उन्होंने बच्चों की तरह ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने बोला, हजरात, हमें अफसोस है कि बाबा साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। दरअसल अभी अभी हमें खबर मिली है कि इस हादसे की दूसरी शिकार नर्स और हमारी देरीना साथी जिसने तंजीम के लिए अजीमुशान कुर्बानियां दी हैं, इंतकाल फरमा गई हैं। कल से हमारे डॉक्टर मरहुमा की जान बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे थे, लेकिन इस हादसे से उनके दिमाग को जबरदस्त सदमा पहुंचा था, जिससे वो जांबर न हो सकी। बात करने वाले भेड़िए की आवाज भर्रा गई। ये मकामी एमपीए और तंजीम के गुंडों का चीफ था। दूसरा बोला, हजरात, हम आपसे माजरत चाहते हैं। बाबा साहब की हालत सदमे की वजह से संभल नहीं रही, इसलिए वो मजीद बातचीत नहीं कर सकेंगे। मैं हुकूमत को वार्निंग देता हूँ कि अगर 48 घंटे के अंदर उसने कातिलों को गिरफ्तार न किया तो हम रास्त इक़दाम करेंगे। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत अपनी एजेंसियों को लगाम दे, वरना हमारे कारकुन खुद उनसे निमट लेंगे। हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला अपने कारकुनों के जज्बात पर कंट्रोल करना है। आप सब जानते हैं कि जाकिर भाई की मौत ने ही उनके दिल छलनी किए हुए थे कि अब जालिमों ने बन्ने भाई को ही मार डाला। हम पर जबरदस्त दबाव है, लेकिन मैं अपने दुखी दिल भाई बहनों से इल्तिजा करता हूँ कि वो बाबा साहब के हुक्म के मुताबिक कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। बराह करम पुरअमन रहिए। हम आपके जज्बात का एहसास करते हैं। वादा करते हैं कि अगर हुकूमत ने हमारे दिए हुए वक्त के अंदर कातिलों को गिरफ्तार न किया तो हम खुद हुकूमत से निमट लेंगे।
ये लिसानी तंजीम का नाम नहाद चेयरमैन अलीम शारिक था। उसने अखबार नवीसों का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा किया और कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। अशफाक भाई के फोन की घंटी बजी और बजते ही चली गई। उसने हैरानी से फोन की तरफ देखा और सोचने लगा कि इस फोन पर आखिर किसने कॉल किया है, क्योंकि उस फोन का नंबर उसके चंद साथियों के अलावा किसी के पास नहीं था और उनमें से किसी को कम से कम उस वक्त फोन करने की जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने अपने साथी अजमत से कहा, जरा देखो कौन है। अजमत ने आवाज बदल कर हेलो कहा। दूसरी तरफ से कोई बहुत जल्दी में बात कर रहा था। आप जो कोई भी हो, मेरी एक दरखास्त सुन लो। अजमत ने सख्ती से पूछा, कौन हो तुम? दूसरी तरफ से बात करने वाला बहुत जल्दी में दिखाई दे रहा था। बोला, खुदा के लिए मेरी बात सुनिए, तारुफ होता रहेगा। कालिया तो आप तक पहुंच चुका है या जल्दी पहुंच जाएगा। मुस्तकबिल में वो आपका बेहतरीन साथी साबित होगा। इस वक्त जैसे भी मुमकिन हो उसकी वालिदा को कह दीजिए कि फौरन कहीं रूपोश हो जाएं। शाम के बाद किसी भी लम्हे उन पर कयामत टूट सकती है। अजमत ने फोन करने वाले से 3-4 सवाल एक साथ पूछ लिए। कौन हो तुम और क्या बात कर रहे हो? कौन सा कालिया? किस नंबर पर फोन किया है? ये उसकी चाल थी कि बातचीत लंबी चले। वो चाहता था कि उसको पहचान ले। दूसरी तरफ से कहा गया, मेरा हवाला बाबर का दोस्त है। कालिया से कहना कि जिसने तुम्हें रिहाई दिलवाई थी उसने फोन किया था। खुदा हाफिज। ये कहकर आरिफ मियां ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। जब से बाबा साहब ने उसे कालिया की बहनों के इग़वा का हुक्म दिया था, वो बेकरारी से उस लम्हे का मुंतजिर था जब उसे फोन करने का मौका मिले और वो कालिया के इस एहसान का बदला उतार सके जो उसने दोनों की जान बख्शी करके उस पर चढ़ाया था। ये फोन नंबर उसे बाबर ने दिया था। बाबर के रवाबित लिसानी तंजीम के बागी ग्रुप से थे जिसकी क़यादत अशफाक भाई कर रहा था और ये लोग दस्तूरी ग्रुप के नाम से अपनी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बनाकर बैठ गए थे। ये लोग अभी इस काबिल भी नहीं हुए थे कि अपने ही शहर में आजादी से घूम फिर सकें। उनका गुनाह सिर्फ ये था कि उन्होंने अपने नौजवानों को दुश्मन का आलाकार बनाकर उसके कैंपों में तखरीबकारी की तरबियत देने की मुखालिफत की थी। उन्होंने बाबा साहब को बावर करवाना चाहा था कि जिन लोगों की क़यादत के वो दावेदार हैं वो तो इस मुल्क के क़याम के लिए अपनी कुर्बानियों का हवाला लिए हुए हैं। उन्होंने तो इस तंजीम की बुनियाद ही उस नाइंसाफी पर रखी थी जो मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वालों के साथ रवा रखी जा रही थी। बाबा साहब तो उनकी बुनियादें ही ढा देना चाहते थे। उन्हें कहा जाता कि ये बड़ा कमजर्फ दुश्मन है, उनकी मदद नहीं कर रहा, उन्हें इस्तेमाल करना चाहता है। तंजीम के नौजवान खून को गरमाकर मुल्क की बुनियादों पर कुल्हाड़ी चलाना चाहता है जिसमें उनके आबा व अजदाद का खून काम आया है। इन मुट्ठी भर सरफिरे नौजवानों का गुनाह ये था कि उन्होंने गैर मुल्की ताकत का आलाकार बनने के बाबा साहब के फैसले की डट कर मुखालफत की और उसे मुल्क दुश्मन करार दिया। वो नहीं जानते थे कि बाबा साहब ने लिसानी तंजीम के नाम पर एक स्मोक स्क्रीन तान रखी है। दरअसल असलियत वो नहीं है जो उन्हें बताई गई है। इस धुएं की चादर के पीछे मुल्क व कौम की सलामती के साथ एक घिनौना खेल रचाया जा रहा है। अक्ल के अंधे लेकिन गांठ के पूरे बाबा साहब ने अपने गैर मुल्की आकाओं की आशीर्वाद से मुल्क का नक्शा ही बदल देने का मंसूबा बना लिया था। वो एक छोटी सी रियासत बनाकर उसका महाराजा बनकर जिंदगी बिताने के ख्वाब देख रहा था। वो अपने गैर मुल्की आकाओं की मदद से अपना अलहदा मुल्क बनाने का ख्वाब देख रहा था। इस घिनौने ख्वाब की ताबीर की सूरत तभी मिल सकती थी जब वो इस मुल्क में एनार्की और लाकानूनियत का तूफान ले आता, जिसके लिए उसे जवान खून की जरूरत थी जो उसे मयस्सर था। अशफाक भाई कभी बाबा साहब का करीब तरीन और जाननिसार साथी शुमार होता तो दोनों ने मिलकर बुरे दिन इकट्ठे गुजारे थे। लेकिन अशफाक भाई का ख्वाब वो नहीं था जिसकी ताबीर करने बाबा साहब जा रहे थे। उन लोगों ने कभी ये जानकर हंगामा आराई नहीं की थी कि इस तरह वो मुल्क का नज़्म नस्क बिगाड़ कर रख देंगे। वो तो जलसे और जुलूसों को जमहूरी तरीके से अपने मुतालिबात मनवाने का सही रास्ता जानते थे। इस बात का इल्म तो उन्हें बाद में हुआ कि आज तक वो इस्तेमाल ही होते आए थे और बाबा साहब की शक्ल में दरअसल एक खूंखार भेड़िया उन पर मुसल्लत हो गया था जिसके जहरीले दांत मुल्क की सलामती की जड़ों में गहरे उतरते जा रहे थे। अशफाक भाई का ज़मीर अंगड़ाई लेकर जागा और ऐसा बेदार हुआ कि फिर उसने अपनी जान हथेली पर रख कर ये अज़्म किया कि वो बाबा साहब के घिनौने ख्वाबों को कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होने देंगे। उसके साथ तंजीम की खामोश अक्सरियत थी लेकिन किसी को जबान खोलने की जरूरत नहीं हो रही थी। बहरहाल एक ऐसा सरफिरा दरकार था जो बिल्ली के गले में घंटी बांधता और ये सरफिरा अशफाक भाई था। उसने जुर्रत रिंदाना से काम लेकर एक रोज उस शहर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखबार नवीसों के सामने बाबा साहब की असलियत बेनकाब कर दी। उस नाकर्दा गुनाह की उसे जो कीमत चुकाना पड़ी उसका शायद अशफाक भाई ने तसव्वुर नहीं किया था। उसे तो यही उम्मीद थी कि जिस तरह अपनी जान हथेली पर रखकर उसने अलम बगावत बुलंद किया है और प्रेस को बाबा साहब की असल शक्ल दिखाई है, उसके बाद मुहिब वतन लोगों की एक फौज उसकी पुश्त पर आन खड़ी हो जाएगी और वो बाबा साहब के खूनी पंजे से तंजीम को रिहाई दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगले रोज वो हैरान रह गया।
किसी अखबार नवीस ने उसकी बात शाया करने की जुर्रत नहीं की थी। अपने मफादात के गुलाम उन कलम की इस्मत बेचने वाले सहाफती दरिंदों में से किसी को ये तौफीक न हुई कि वो अशफाक भाई की तंजीम से अलहदगी की खबरें शाया कर देता। उन्होंने तो अपने कलम और ज़मीर जाने कब से बाबा साहब के पास गिरवी रख दिए थे। वो भला बाबा साहब की नाराजगी कैसे मोल ले सकते थे? अशफाक भाई की कॉन्फ्रेंस का तो अखबारात ने मुकम्मल बायकॉट किया था, लेकिन उनके हवाले से एक बड़ी खबर को तमाम अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर खूब मसाले लगाकर सुर्खियां जमा कर शाया किया था। उस खबर में बताया गया था कि लिसानी तंजीम के नाराज और गुस्से से बिफरे जुलूस ने अशफाक भाई और उसके साथियों के मकानात को आग लगा दी है। उनके अहले खाना में से बहुत से नफरत की भड़काई उस आतिश का ईंधन बन गए थे। उन्हें बाबा साहब के गुंडों ने जिंदा बाहर निकलने की इजाजत ही न दी थी। उनके अहले खाना की लाशें बाबा साहब की अग्नि की भेंट चढ़ गईं। अशफाक भाई और उनके साथियों को देखते ही कत्ल कर देने के अहकामात 59 से जारी हो गए। बाबा साहब के तरबियत याफ्ता कातिल शिकारी कुत्तों की तरह उनकी बू चारों तरफ सूंघते फिरते थे। इन हालात में भी अशफाक भाई और उनके साथियों ने हिम्मत न हारी और वो लोग बाबा साहब के कहर से बचते बचाते अपने आप को मुनज़्ज़म करते चले गए। वो बहुत कम उस शहर में क़याम करते थे और अक्सर मुल्क के दूसरे हिस्सों में अपने खुफिया ठिकानों पर रहा करते थे। दस्तूरी ग्रुप ने लिसानी तंजीम में मौजूद अपने देरीना साथियों से कभी रिश्ता नहीं तोड़ा था। उन्हें उम्मीद थी कि जल्दी या बदेर ये लोग उनसे आन मिलेंगे, क्योंकि बाबा साहब की असलियत अब बेनकाब होने लगी थी। बाबर और कालिया जैसे बागियों के लिए उनके ठिकाने जाय पनाह का काम देते थे। तंजीम का हर बागी अपनी पहली फुर्सत में उन्हीं से राब्ता कायम किया करता था। इस तरह उन्हें कदरे इखलाकी सहारा ही मिल जाता था। आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की तादाद बढ़ने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।